Good morning, students. Myself Vipin Reshamwala, and today we are going to continue Chapter 6 Life Processes, Part 4, that is Transportation. Now, before starting this chapter, I would like to inform all the students that from Monday onwards, that is from 22nd, I will be giving you a schedule question answers. 2 to 3 question answers daily I will be providing for a particular week. Say, for example, SS chapter number 4 or 3 or whatever chapter I will be giving you. And daily 2 to 3 chapters, 2 to 3 question answers you need to learn and then you need to write in your notebook. Okay, so that will be your writing practice, and I think all the students must write this. And during this lockdown period, we can't do anything more, that is we can't check all the students schedule and homework like this. So I hope all the students will write the question answers by learning properly and follow my schedule. Okay, then and then only your science and ss will be throughoutly it will be good. So let's proceed. Transportation. Up till now we have seen that nutrition, that is food. We have seen respiration, that is intake of oxygen. So we have seen digestive system of human as well as we have seen respiration system of human beings. And now transportation. We have also seen that whatever the food we eat, it is used to get us energy. Energy we are getting in the respiration process. We have in last topic we have seen that whatever the food we eat, the carbohydrate, glucose, that is proteins, amino acid, and fat, that is fatty acid and glycerol, is moving towards all cell, and in the cell the mitochondria, their respiration process takes place, and glucose is acted upon by uh, oxygen, and hence the energy is created. So that energy will be created because how the oxygen is transferred to each and every part of the cell. So that is the basically transportation process. So let's see first of all. And in the last topic, we have seen that who transfer this oxygen and various gases to all the parts of the cell. So that is the hemoglobin. Last day we have seen RBC's content, that is hemoglobin, is the respiratory pigment which transfers exchange of gases, that is carbon dioxide and oxygen. So let's proceed. Before that, one activity is there: transportation in human beings. Activity 6.7. Visit the healthcare in your locality and find out what is the normal range of the hemoglobin content in human being. Though already I have written this, that is in men, in generally male, 13.5 to 17.5 gram per deciliter in one cell. That is a 13.5 to 17.5 grams per deciliter. Deciliter means 1/10 of the liter. In women, it is 12 to 15.5 gram per deciliter, and in children, it is 11 to 13 gram per deciliter. Is there any difference of the hemoglobin level in men and women? So definitely we are seeing this. A minor difference is there. Visit a veterinary clinic. Veterinary means के जानवरों की जो clinic होती है वो. Find out what is the normal range of hemoglobin content of animals like buffalo or cow. So that also I have mentioned, that 12.5 to 14.5 gram per deciliter. So basically no major difference is there in vertebrates. Vertebrates means those are having this kind of blood. In this content, different in cows, males and female. So yes, definitely there is a difference, but minor difference. Compare the difference seen in male and female human beings and animals, and how would the difference, if any, be explained. So all these differences are there because of their body structure, because of the content of the blood in their body, because of their body size. Various things are matter for the content of hemoglobin in them. We have seen in the previous section that blood transport food, oxygen and waste material into our body. Blood जो होता है वो हमारी बॉडी में खाना भी इधर से उधर हर एक सेल तक पहुंचाता है. देन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड भी पहुंचाता है. और वेस्ट मटेरियल यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया जो हमारी सेल को जरूरत नहीं है, तो वो वापस से लंग्स तक पहुंचाता है और फिर एक्सेल कर देते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड को. तो दैट इज ऑल्सो वेस्ट प्रोडक्ट. एंड इसके अलावा भी जो अनडाइजेस्टेड फूड वगैरह रहते हैं तो वो भी लार्ज इंटेस्टाइन में वो ब्लड के थ्रू ही पहुंचता है. In class 9 we have learned about blood being a fluid connective tissue. Blood क्या है? तो fluid यानी liquid connective tissue है, क्योंकि हर एक body part तक वो पहुंच जाता है. Blood consists of the fluid medium called plasma, very important, plasma, in which cells are suspended.
सेल्स आर सस्पेंडेड यानी फ्लोटिंग। तो बच्चों ब्लड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा जो कि पेल येलोइश कलर का होता है, और उसके अंदर कई तरह के सेल्स होते हैं, जिसमें बेसिक तीन सेल्स जो यहाँ पे मैंने लिखे हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। इन सभी के बारे में कल मैंने इनके फुल फॉर्म भी लिखवाए थे आपको। दैट आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, और प्लेटलेट्स को लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। तो हर एक के फंक्शंस के बारे में 9th स्टैंडर्ड में आपने देखा ही होगा। बट द मेन थिंग दैट इज हेमोग्लोबिन, तो हेमोग्लोबिन जो है वो किस में होता है, तो वो आरबीसी में होता है। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन द डिजोल्व फॉर्म। हम जो यूरिन करते हैं बच्चों, तो यूरिन में किडनी तक पहुंचाने वाले जो ये नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो भी ब्लड के थ्रू ही ट्रांसफर होता है। ऑक्सीजन इज कैरिड बाय द ब्लड, thus we need a pumping organ to push blood around the body। पंपिंग ऑर्गन हमको चाहिए जो ब्लड को पूरी बॉडी में फैला सके। लास्ट डे वी हैव सीन द डिफ्यूजन जैसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होता है कि वो बॉडी एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आके डिफ्यूजन से गैसेज एक्सचेंज कर लेते हैं। बट अपनी बॉडी में डिफ्यूजन के लिए हमने कल ही देखा था कि अगर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ट्रांसफर होना हो ना तो 3 साल लगेंगे। तो इसलिए हमारी बॉडी में कोई ऐसी ऑर्गन होनी चाहिए जो पंप करे। जैसे पानी अगर ग्राउंड फ्लोर पे है तो उसको पंप करके अपनी सोसाइटी में होता है, ओवरहेड टैंक्स होती है, तो उसको ऊपर तक लेके जाया जाता है वाया मोटर। तो वैसे अपनी बॉडी में भी एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसकी वजह से जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में फैले। तो डेफिनेटली वी आर नोइंग दिस ऑर्गन, द पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी, एंड द मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी दैट इज हार्ट। तो हार्ट इज द पंपिंग ऑर्गन। So we need a pumping organ to push blood around the body, the network of tubes to reach all the tissue and the system in place to ensure that this network can be repaired if damaged। तो जहाँ जहाँ पे ब्लड की रिक्वायरमेंट होगी तो वहाँ पे ब्लड पहुँचेगा, और ब्लड कई सारी चीज़ों को ट्रांसफर करता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह सब कुछ जो है वो हर एक सेल तक पहुँचाता है। सेल में जाने के बाद ऑक्सीजन हर एक सेल तक पहुँचता है, तो वहाँ रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है और उसमें से एनर्जी मिलती है। So let's see very important topic of this chapter, that is heart, pumping action of heart। तो हार्ट के बारे में यहाँ पे बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मैंने एक फ्लो चार्ट भी बनाया है, तो आपको मैं अच्छे से बताऊंगा वो चीज़। तो ये है डायग्राम ऑफ दी हार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैं ज़रा भी टिक नहीं करूँगा क्योंकि जितना ज़्यादा टिक करूँगा बिगड़ता जाएगा। तो यहाँ पे आपको अच्छे से मैं बताऊँगा, बहुत ही ध्यान से समझना है इसको। दिस इज ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट इज कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर, 4 चैम्बर होते हैं। जो अपर के चैम्बर है, ये वाले ऊपर के जो चैम्बर्स हैं तो इसको आर्टीरियम कहते हैं, और जो नीचे के जो 2 चैम्बर्स हैं दोनों एक लेफ्ट साइड और राइट साइड पे होते हैं तो उसको वेंट्रिकल्स बोलते हैं। तो लेफ्ट आर्टीरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्टीरियम एंड राइट वेंट्रिकल। तो ये 4 इसके चैम्बर्स हैं। ह्यूमन बींग में 4 चैम्बर होते हैं। लेट्स सी आवर पंप द हार्ट। द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। 9th स्टैंडर्ड में देखा था ये कैसे मसल्स होते हैं, कार्डियक मसल। ये मसल्स और किसी भी बॉडी पार्ट में नहीं होते, ये सिर्फ और सिर्फ हार्ट में ही होते हैं। द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज एज बिग एज अवर फिस्ट। फिस्ट बच्चों यानी मुट्ठी, हम जैसे हाथ की मुट्ठी बांधते हैं, तो हर एक बॉडी जो होती है उसका जो फिस्ट का जो साइज होता है अप्रोक्सीमेट उतना साइज अपने हार्ट का होता है। Because both oxygen and carbon dioxide have to transported by the blood, the heart has a different chambers to prevent the oxygen-rich blood from mixing with the blood containing carbon dioxide। देखो बच्चों, हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को और हम एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हम ह्यूमन्स हैं और हमको एनर्जी की बहुत ज़्यादातर से ज़रूरत होती है। हमारे दिन भर में हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिसमें हमको एनर्जी चाहिए होती है, तो हमको प्योर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो किसी भी तरह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ना हो जाए, तो इसलिए ये अलग से वॉल बीच में होती है। तो लेट्स सी, आप ध्यान दो यहाँ पे, ये लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है, और ये राइट आर्टीरियम और राइट वेंट्रिकल है। इसके बीच में ये जो आप पार्ट देख रहे हो सेप्टम, ये सेपरेटिंग डिवाइडिंग वॉल है, बीच में देख रहे हो आप रेड कलर के वो भरी हुई है, तो दैट इज अ सेप्टम। ये सेप्टम का काम क्या होता है, तो किसी भी तरह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स ना होने देना, तो ये सेप्टम का काम होता है। ओके, द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज टू रीच द लंग्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड। अब समझो बच्चों होता क्या है, रेस्पिरेशन में हमने देखा कि ऑक्सीजन हर एक सेल तक पहुंचता है,
जब ऑक्सीजन हर एक सेल तक पहुंचता है, तो हमने कल वो ग्लाइकोलिसिस वाली साइकिल भी देखी थी कि किस तरह से ह्यूमन बींग्स में जो, और कई सारे मैमल्स में भी इनफैक्ट, कि किस तरह से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, एंड लास्ट द एंड प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए वेस्ट प्रोडक्ट है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को किस तरह से हमको बॉडी से बाहर निकालना है, यानी जो काम हार्ट ही करता है, तो किस तरह से वो होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ब्लड में डिजोल्व हो जाता है, कल ही हमने देखा था, और ब्लड उसको वापस से खींच के लंग्स तक पहुंचाता है। तो हार्ट में से होते हुए वो जाता है, तब जाके वो लंग्स में जाता है, और लंग्स से फिर बाहर एक्सेल हो जाता है। तो लेट्स सी द प्रोसीजर। द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो यूज अप हो चुका है, जो हमारे किसी काम का नहीं है, हैज टू रीच द लंग्स, लंग्स तक पहुंचना होता है फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव। एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन वाला ब्लड फ्रॉम द लंग्स, जो हम सांस लेते हैं, एयर जो इनहेल करते हैं, हैज टू ब्रॉड बैक टू द हार्ट, तो हार्ट तक उसको लेके जाना पड़ता है। एक बार ऑक्सीजन वाला ब्लड आएगा तो वो हार्ट में आएगा, और हार्ट उसको पुश करके पूरी बॉडी तक फैलाएगा। दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पम्प्ड इनटू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, तो इस तरह से हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंचता है। तो पंपिंग एक्शन क्या होता है वो हम लोग देख रहे हैं। वी फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, तो यहाँ पे पूरा प्रोसेस हम लोग देखेंगे। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स comes to a thin wall upper chamber of the heart called the left or left arterium। ऑक्सीजन रिच ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, समझो ये है पल्मोनरी वेन्स। यहाँ देखो बच्चों, पल्मोनरी वेन्स, ये आपको दो कलर दिख रहे होंगे, ऑरेंज टाइप का कलर और ब्लू टाइप का कलर। ऑरेंज वाला जो पूरा पार्ट है वो लेफ्ट पार्ट है। तो पल्मोनरी वेन के थ्रू, दिस इज द ओनली वेन, ये अकेली ऐसी वेन है जो ऑक्सीजन वाला खून लंग्स में से लेके आती है और हार्ट के लेफ्ट आर्टीरियम में उसको डालती है। तो पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड लेफ्ट आर्टीरियम में आता है। ध्यान से समझना कि ब्लड कहां से कहां जा रहा है। The left arterium relaxes, which is the collecting, sorry, when it is collecting the blood। अब ये जो चेम्बर्स है ना बच्चों, ये रिलैक्स होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। रिलैक्स तब होंगे जब ब्लड इसमें आएगा, और कॉन्ट्रैक्ट तब होंगे जब ब्लड इसमें से जाएगा दूसरे जगहों पे। द लेफ्ट आर्टीरियम रिलैक्सेस व्हेन द ब्लड, व्हेन इट इज कलेक्टिंग द ब्लड, इट इज देन कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, while the next chamber, that is left ventricle, expands। अब समझो, ये लेफ्ट आर्टीरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, यानी ये वाले चेंबर से ये वाले चेंबर में जब खून आएगा ऑक्सीजन वाला, तो ये वाल है बीच में, बाइकस्पिड वाल है, ये टेक्स्ट में लिखा नहीं है, ये बाइकस्पिड वाल है, ये ओपन होगा। इस वाल का दूसरा काम क्या है बच्चों, एक बार ये लेफ्ट आर्टीरियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ और ये लेफ्ट वेंट्रिकल में खून गया, तो वापस से खून लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्टीरियम में नहीं जाएगा, ये वाल प्रिवेंट करेगा, ये वाल उसको ऊपर वापस से जाने देगा नहीं। तो इट इज अ वन वे वाल, बाइकस्पिड वाल इसको बोलते हैं। ओके, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा लेफ्ट आर्टीरियम, और लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपांड होगा, तो खून ऊपर से कहाँ आएगा बच्चों, नीचे आएगा। ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल में, सो दैट द ब्लड इज ट्रांसफर्ड टू इट। When the muscular left ventricle contracts in its turn, the blood is pumped out of the body। ऊपर देखो ये बच्चों डायग्राम, ये एरो आप देखो, यहाँ से खून आया, वेंट्रिकल में गया, और ये खून ऊपर जाएगा। यहाँ देखो डायग्राम, ऊपर गया, और ये ऊपर जाते जाते पीछे की साइड से 3 डायमेंशनल है, ये देखो ऊपर बाहर कहाँ से जाएगा, एओर्टा से। एओर्टा इज द पार्ट, एओर्टा ये जो वाल है, ये एओर्टा सबसे ब्रॉड, सबसे बड़ी ये वाल होती है, सॉरी सबसे बड़ी ट्यूब होती है। यहाँ से ब्लड एकदम प्रेशराइज फॉर्म में जाता है और अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक फिर पहुंचता है। ओके, सो वापस से लेफ्ट आर्टीरियम का मैं बता दूं, पल्मोनरी वेन से द ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स द हार्ट फ्रॉम पल्मोनरी वेन, देन इट एंटर्स लेफ्ट आर्टीरियम, एंड लेफ्ट आर्टीरियम रिलैक्सेस। When left arterium contracts, it pushes the blood, oxygen-rich blood, to the left ventricle, and through left ventricle, it will move through aorta. Aorta is the biggest tube, largest tube of the heart. Then from aorta, the blood is pumped up to the various organs and various cells of the body। ये हो गया ऑक्सीजन वाला खून कहाँ से कहाँ आता है और कहाँ जाता है। ओके,
एओर्टा से पास होता है पूरी बॉडी में। नाउ इट कम्स टू डीऑक्सीजनेटेड। अब ब्लड सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंच गया, वहाँ पे हर एक जो पर्टिकुलर प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन होता है, हर एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू प्रोसेस होता है, ऑक्सीजन यूज अप होता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। अब जो सेल में कार्बन डाइऑक्साइड आ गया है यानी वो बाहर निकलेगा सेल से, तो बाहर उसको कौन लेके जाएगा? तो कल की तरह ही हमने देखा हेमोग्लोबिन उसको लेके जाएगा। तो हेमोग्लोबिन हर एक सेल में से लेके जाएगा ब्लड को, सॉरी ब्लड जो है उसके अंदर का हेमोग्लोबिन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाएगा, वापस से हार्ट तक लाएगा। तो उसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं है बट उसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चेम्बर ऑन द राइट साइड, द राइट आर्टीरियम, एंड इट एक्सपांड्स। तो देखो डायग्राम में बच्चों, ये है वेना कावा, ये भी है वेना कावा। ये दोनों ऊपर और नीचे से एक्सपांड होते हैं। जो ऊपर वाला ये जो ब्रांच आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, और ये वाले जो साइड से आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। अब सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा ये है क्या? हार्ट में, हमारे हार्ट से ऊपर के जितने भी हिस्से हैं, जैसे टॉर्सो हो गया, चेस्ट हो गया, ब्रेन हो गया, इन सब से जो खून होता है वो यहाँ से एंटर करेगा। ओके, सुपीरियर वेना कावा से एंटर करेगा। और जो हमारे चेस्ट के नीचे के जितने भी ऑर्गन्स है जहाँ से भी खून आता है वो इंफीरियर से एंटर करेगा। ओके, तो ये दोनों वेना कावा है इनलेट, बट आते कहाँ पे है वो? तो वो आते हैं राइट आर्टीरियम में, ये वाले हिस्से में आते हैं, राइट आर्टीरियम में आते हैं। ओके, एज द राइट आर्टियम कॉन्ट्रैक्ट्स, अब सेम प्रोसीजर जो लेफ्ट में हुआ था वो राइट में होगा। राइट आर्टियम कॉन्ट्रैक्ट होगा टू द कॉरस्पॉन्डिंग लोअर चेम्बर, दैट इज राइट वेंट्रिकल। तो अब यहाँ पे जो खून ऊपर राइट आर्टियम में था अब कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। और यहाँ से वो होते हुए, डायग्राम आप एरो देखते जाओ, यहाँ से होते 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 यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स तक पहुंचेगा। तो ये जो नीला हिस्सा है यहाँ से मेरा आप एरो देख सकते हैं, यहाँ से आएगा और ये एरो के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स तक जाएगा। तो पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। अब समझो बच्चों, वेन्स वो होती है जो कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करती है, बट पल्मोनरी वेन वो है जो, एक ही ये पल्मोनरी वेन ऐसी है जो ऑक्सीजन लाती है। आर्टरीज जो होती है बच्चों वो ऑक्सीजन लेके जाती है, बट पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी लौती आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है वो लंग्स तक लेके जाती है। ओके, सो राइट वेंट्रिकल डायलेट्स, डायलेट्स यानी कि वो रिलैक्स होगा, तो खून ऊपर से नीचे आएगा राइट आर्टेरियम से राइट वेंट्रिकल में। दिस ट्रांसफर ऑफ ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल which in turn pumps to the lungs for oxygenation। ऑब्वियसली ये जो खून जाएगा लंग्स में वहां पे जाएगा, और जो ऑलरेडी हमने इनहेल की हुई है सांस उसमें ऑक्सीजन आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा लंग्स में और ऑक्सीजन जो है वो नया ऑक्सीजन ले लेगा। Since ventricle have to pump blood into the various organs, they have thicker muscular wall। वेंट्रिकल्स की जो वॉल होती है बच्चों, ये जो नीचे के दो चैम्बर है वेंट्रिकल, क्योंकि इनको पुश करना है तो इनमें से खून जो है वो बहुत प्रेशराइज फॉर्म में जाएगा वेंट्रिकल में से, तो इसलिए उनकी वॉल्स काफ़ी थिक होती है। देन द आर्टेरिया, आर्टेरिया की वॉल्स काफ़ी नॉर्मल होती है, थिन होती है। Valves ensure that the blood flow does not back when the arteria or ventricle contracts। जब आर्टिया और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो किसी भी तरह से जो ब्लड फ्लो है वो वापस से जाएगा नहीं। तो बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल आर देयर। मैंने आपको बताया यहाँ पे बाइकस्पिड वाल वो होती है लेफ्ट साइड पे, जबकि ट्राइकस्पिड वाल जो है वो राइट वेंट्रिकल में, राइट साइड पे होती है। ये वाल दोनों का क्या काम है बच्चों? तो ये ब्लड को आर्टीरियम में से जब वेंट्रिकल में ब्लड आता है तो वेंट्रिकल से वापस आर्टीरियम में नहीं जाने देता, तो लेफ्ट आर्टीरियम से बॉडी में जाएगा, इनफैक्ट लेफ्ट साइड से खून बॉडी में जाएगा, और राइट साइड पे जो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है ये ब्लूइश पोर्शन में वो जाएगा लंग्स में खून वापस से लेने के लिए। क्योंकि इसमें दो बार खून आता है, एक लेफ्ट साइड से और खत्म होके पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से राइट साइड पे आएगा, तो इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन भी बोला जाता है। ओके, सो नाउ ये पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। तो किस तरह से हार्ट है वापस से मैं डायग्राम के थ्रू पहले बता देता हूँ, फिर एक फ्लो चार्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल,
यहाँ पे अगर हम राइट साइड से शुरू करें, कहीं से भी शुरू करें डजेंट मैटर, बट हमको पूरी साइकिल कंप्लीट करनी है। तो मैं यहाँ से आपको बताता हूँ। सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा से ब्लड एंटर करेगा। ओके, देन द ब्लड एंटर्स टू द राइट आर्टियम। ये ब्लड कौन सा होगा बच्चों? तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। When it enters the right arterium relaxes and the blood will take in the right arterium. Then through the valve, tricuspid valve, the blood enters the right ventricle. When right ventricle relaxes and the right arterium will contracts. Okay. From this particular right ventricle, the blood is pumped up to the pulmonary arteries, and through pulmonary arteries the blood will move on to the lungs to get the fresh oxygen and deliver the used carbon dioxide. This carbon dioxide will be exhaled through the air, through the nostrils, and the new oxygen will be inhaled through the nostrils. Now it turns for a blood to carry out the new oxygen. So from the lungs, this pulmonary vein, ये pulmonary vein जो है, it collects the blood containing oxygenated blood to the left ventricle. Now left ventricle में खून आ गया. This left ventricle will relax and it will enter in the right ventricle when it contracts. So this bicuspid valve ensures that the blood doesn't flow to the left ventricle again. Okay. So the blood will never go again to the arteriums after it enters the ventricle. From ventricle, from here backside we can see it is pushed on to aorta. ये aorta वाली जो ट्यूब है, ये सबसे बड़ी ट्यूब होती है aorta. यहाँ से पूरी बॉडी पार्ट्स में जो है वो ब्लड फिर जाएगा. फिर जब वैसे ही ब्लड खत्म हो जाएगा, वहाँ पे ब्लड का जो यूज अप है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके वापस से राइट आर्टेरियम में आएगा. तो बिकॉज द ब्लड इज मूविंग इन द हार्ट 2 times, so it is also known as double circulation method. So let's see the flow chart. मैंने यहाँ पे आपके लिए एक फ्लो चार्ट भी बनाया हुआ है, तो ये बहुत ही इजीली आपको समझ में आएगा. ध्यान से समझना. फ्लो चार्ट ऑफ द ब्लड फ्लोइंग इनटू हार्ट. बीवीएस स्टूडेंट वालों को ये करवाते हैं, बुल्काविया स्टूडेंट वालों को, तो इस टाइप से भी आप लिखोगे तो चलेगा. सबसे सिंपल में बताया मैंने. सबसे पहले वेना कावा में ब्लड आएगा राइट साइड पे. वो कौन से वेना कावा है? सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा. दिस पर्टिकुलर ब्लड इज कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है. तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. देन इट एंटर्स राइट आर्टेरियम. Then it enters left ventricle through tricuspid valve. Then it moves to pulmonary artery, the only artery which carries deoxygenated blood. बाकी सारी arteries जो है वो ऑक्सीजन वाला ब्लड कैरी करती है. Then it enters to lungs. lungs में एंटर करेगा. Then from lungs, oxygenated blood will be there, that is O2. कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ये O2 है, ऑक्सीजन. It enters again to pulmonary vein. pulmonary vein में आएगा oxygenated blood लेके. Then it enters left arterium. It enters left ventricle through bicuspid valve. Then it moves to aorta, the biggest artery of the heart, and to all the parts of the cell through capillaries. So इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड. बहुत ही सिंपल है. अगेन फ्लो चार्ट ऑफ द ब्लड फ्लोइंग इनटू द हार्ट. वेना कावा राइट साइड से मैं शुरू कर रहा हूँ. आप लोग चाहो तो लेफ्ट साइड से भी शुरू कर सकते हो, राइट साइड में खत्म कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. लेफ्ट वेना कावा राइट साइड, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा. सुपीरियर का लिए मैंने बताया दैट द ब्लड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट वो सुपीरियर में से एंटर करेगा, एंड द लोअर पार्ट ऑफ द चेस्ट वो पूरा इंफीरियर से एंटर करेगा हार्ट के अंदर. इट ऑलवेज कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. राइट साइड कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. It enters to right arterium through tricuspid valve, through it enters to the right ventricle, then through pulmonary artery it moves to lungs. यहाँ पे एक पार्ट खत्म हो गया, lungs में चला गया. Now after it goes through lungs, it will exhale carbon dioxide and new oxygen will be connected to the blood, and oxygenated blood, that is O2, will enter through pulmonary vein. In pulmonary vein it goes to arterium. Through bicuspid valve it enters ventricle, left ventricle, and through left ventricle it will move to aorta, the biggest artery, and to body cells through capillaries. blood capillaries होती है हर एक body cell से attach, तो सभी तक वो खून पहुंच जाएगा. This is known as double circulation process. Now डबल सर्कुलेशन में हुआ क्या, तो वो हम देख लेते हैं. ये पूरा ये हार्ट है. ये डायग्राम समझो. स्कीमेटिक डायग्राम, ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ये डायग्राम आपको पूछते हैं. हार्ट का भी डायग्राम पूछते हैं आपको. दैट डायग्राम इज सेक्शनल व्यू ऑफ हार्ट. ये जो डायग्राम है ना बच्चों, ये सेक्शनल व्यू ऑफ हार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट.
ये 4 मार्क में भी कभी कभी अकेला डायग्राम भी पूछ लेते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है. ओके. नाउ डबल सर्कुलेशन में होता क्या है. ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स, तो उसके बाद क्या होता है. अब ये डायग्राम में पहले समझ लो, ये है अपना हार्ट. यू कैन सी, ये वाला जो चेंबर है मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगा यहाँ से. सॉरी, एओर्टा से, ये एओर्टा वाली पाइप है, यहाँ से जाएगा, छोटी छोटी कैपिलरीज में कन्वर्ट होगा, ये हर एक सेल तक पहुंचा. कैपिलरीज बॉडी ऑर्गन अपार्ट फ्रॉम लंग्स, ध्यान रखना लंग्स के अलावा एओर्टा हर एक जगह पे खून सप्लाई करेगा. देन ये कैपिलरीज में जैसे ही खून खत्म हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा हर एक सेल का, तो ये सारी वेन्स में जो है, वेन्स इनको बोलेंगे, वेना कावा के थ्रू वापस से हार्ट में आएगा. ओके. फिर हार्ट से कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा. लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या जितना ब्लू कलर का दिखाया ना मैंने, वो सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड है, और जितना रेड वाला है वो सब ऑक्सीजन वाला है. तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ लंग्स में जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा, वापस से रिमूव कर देगा, ऑक्सीजन ले लेगा, एंड लंग्स के थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू वापस से लंग्स में आ जाएगा. ओके. तो ये पूरा बॉडी का यहाँ पे स्ट्रक्चर यहाँ पे बता दिया गया है आपको. ओके. तो ध्यान में रखना है इसको, बहुत ही सिंपल सा है ये. The separation of the right side and the left side of the heart is useful to keep the oxygenated and deoxygenated blood from mixing. तो वो काम कौन करता है बच्चों, सेप्टम. मैंने पहले ही बताया कि राइट साइड की वॉल और लेफ्ट साइड की वॉल के बीच में एक दीवार है जिसको सेप्टम बोलते हैं. और ये सेप्टम का काम क्या है, इट प्रिवेंट्स द ऑक्सीजन एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू गेट मिक्स्ड. Such separation allows the highly efficient supply of oxygen. अगर मिक्सिंग नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा प्योर ऑक्सीजन जो है हमारी सारी नीड्स फुलफिल करेगा हमारी बॉडी के लिए. दिस इज यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स, जैसे हम हैं, सच एज बर्ड्स एंड मैमल्स, which constantly use energy to maintain their body temperature. In animals that do not use energy for this purpose, the body temperature depends on the temperature of the environment. Last year देखा ही होगा. Such animals like amphibians or many reptiles have three chambered heart. 3 chambered heart होते हैं इनके. 2 आर्टीरियम होते हैं, बट वेंट्रिकल आधा अधूरा ही होता है, एक ही होता है. तो उसमें ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिक्स होता रहता है. एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम्स. फिशेस, जो मछलियाँ होती है, ऑन द अदर साइड ओनली 2 चैम्बर्ड, खाली 2 ही चैम्बर का हार्ट होता है इनका. एंड ब्लड इज पम्प थ्रू द गिल्स. कल ही हमने देखा था रेस्पिरेशन में जो फिशेस होती है वो काफ़ी तेज़ी से सांस लेती है. वो तेज़ी से सांस क्यों लेती है, क्योंकि उनको 2 ही चैम्बर के हार्ट होते हैं, प्लस उनको डिजॉल्व फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन लेना होता है. तो इसलिए वो बहुत तेज़ी से सांस लेते हैं, मुंह से पानी लेते हैं, और गिल्स के थ्रू जो खून होता है वो पूरा भगाते हैं, वहां से जो ब्लड होता है वो पिकअप करता है ऑक्सीजन को. सो द ब्लड इज पम्प थ्रू द गिल्स एंड इज ऑक्सीजनेटेड देयर. जो ऑक्सीजन लिया होता है रेस्पिरेशन के थ्रू, वो वहां ब्लड कलेक्ट करता है गिल्स के पास से, एंड passes डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. दस ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट. तो फिशेस में सिर्फ एक ही बार हार्ट ट्रैवल, ब्लड जो है वो हार्ट से ट्रैवल होता है, तो इसलिए उनको 2 चैम्बर ही होते हैं. दस ब्लड गोज ओनली वंस through the heart of the fish during one cycle of the passage through the body. On the other hand, it goes through the heart twice during each cycle in other vertebrates. Vertebrates यानी जिसके बैकबोन होते हैं, जिनका स्पाइनल कॉर्ड वर्टिबल कॉलम होता है, उनको बैकबोन होता है, उनको वर्टिब्रेट्स बोलते हैं. हम भी वर्टिब्रेट्स में ही आते हैं. दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन. इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन. ओके. तो ये है पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर, किस तरह से हार्ट वर्क करता है और उसके बारे में. अब ब्लड प्रेशर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं बच्चों. ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ द वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर. अभी आर्टरीज और वेन्स हैं, ये आर्टरीज और वेन्स के थ्रू ब्लड बहता है. अभी वेन्स का तो फिर भी ठीक है, क्योंकि उसमें इतना प्रेशराइज वाला ब्लड नहीं होता है, बट आर्टरीज में से जब ब्लड जाता है, यानी जब एओर्टा से ब्लड मूव करता है आर्टरीज में, बॉडी पार्ट्स तक जब पहुंच रहा होता है, तो एट दैट टाइम द ब्लड प्रेशर इज वेरी हाई. उस टाइम पे जो ब्लड का प्रेशर होता है ना वॉल्स के ऊपर, आर्टरीज के ऊपर, वो काफी ज्यादा होता है. दिस ब्लड प्रेशर इज ग्रेटर इन आर्टरीज देन इन वेन. जैसे मैंने बताया कि क्योंकि आर्टरीज जो है वो खून
हर एक पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुंचाती है एक्सेप्ट लंग्स। लंग्स में जो आर्टरी जाती है ना बच्चों, पल्मोनरी आर्टरी, मैंने बताया आपको। तो उसके अलावा ब्लड जो है पूरी बॉडी में आर्टरीज के थ्रू जाता है। द प्रेशर ऑफ द ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन जिसको बोलते हैं, इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। मैंने बताया ना, जब जब वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट यानी जब दबेगा, दब के वो एओर्टा से ब्लड पूरी बॉडी पार्ट्स में जाएगा ना, तो उस टाइम के जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। वो प्रेशर हाई होता है, उसको हाई प्रेशर बोलते हैं, क्योंकि हार्ट में से वो ऑर्गन्स तक बहुत तेजी से पुश होके जा रहा है। तो कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, या तो वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कौन सा वाला, वो भी लेफ्ट वेंट्रिकल, तो उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, ओके। And the pressure in the artery during ventricular diastole, that is relaxation, is called diastolic pressure. सिस्टोलिक प्रेशर तब होता है जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, दोनों ही वेंट्रिकल एक्चुअली। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बॉडी पार्ट्स में जाएगा, और जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो लंग्स के अंदर जाएगा। तो इन दोनों ही केस में जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल होता है तो काफ़ी फोर्सफुली होता है, इसकी वजह से इसका प्रेशर थोड़ा हाई होता है, जिसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। एंड द प्रेशर इन द वेंट्रिकुलर डायस्टॉल, इसको रिलैक्सेशन जब होगा, यानी जब उसमें खून नहीं होगा, जब वो वॉल्स जो होंगे वो रिलैक्स होंगे, तो उसके बोलते हैं डायस्टॉलिक प्रेशर। ये कब होगा, जब आर्टीरियम, ऊपर का लेफ्ट आर्टीरियम और लेफ्ट राइट आर्टीरियम भरेगा खून से, तब ये डायस्टॉलिक प्रेशर, ये थोड़ा कम होता है। द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज अबाउट 120 mm of Hg mercury, and the diastolic pressure of is 80 mm of Hg, okay। Hg जो है वो मर्क्यूरी का सिंबल है। तो नॉर्मल प्रेशर कितना होना चाहिए, 120 से लेके 80 mm ऑफ Hg प्रेशर होना चाहिए, जिसमें हाई प्रेशर यानी अपर प्रेशर कितना होना चाहिए नॉर्मल ह्यूमन का, 120, और लोअर प्रेशर कितना होना चाहिए, 80। अगर इससे ऊपर या नीचे जाता है ना बच्चों, तो डिजीनेस, चक्कर वगैरह ये सब भी शुरू हो जाता है, ओके। तो डायग्राम के थ्रू यहाँ पे बताया गया, आपको देखा ही होगा, डॉक्टर इस टाइप का बेल्ट मानता है और उसके बाद प्रेशर चेक करता है। तो जब सिस्टोलिक प्रेशर होगा तो 120, एंड जब डायस्टोलिक प्रेशर होगा तो 80 पता चलेगा उसमें, ओके। तो यहाँ पे वो स्टेथोस्कोप से वो मेजर करता है, ऑडिबल साउंड होता है उसमें, पता चलता है कि किस तरह से दबलब करता है ना वो। ब्लड प्रेशर इज मेजर विद द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्पिग मैमोनोमीटर, स्पिग मैनोमीटर, स्पिग मैनोमीटर। High blood pressure is called hypertension, while the high blood pressure is called hypertension and is caused by the constriction of the arteriole। कभी कभी आर्टरीज जो होती है उसके अंदर कंस्ट्रिक्शन यानी दबाव ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसकी वॉल्स थोड़ी पतली हो जाती है, नैरो हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड जिस तेज़ी से या जिस प्रेशर में जाना चाहिए वो नहीं जा पाता, तो ब्लड का प्रेशर तो वॉल पे हाई हो जाएगा, तो तब हमारा प्रेशर बढ़ जाता है, which results in the increased resistance of the blood flow. It leads to the rupture of the artery and internal bleeding। तो कभी कभी अगर प्रेशर बढ़ जाता है तो ब्लड कैपिलरीज फट भी सकती है, और अगर ब्लड कैपिलरीज फटी तो हेमरेज भी हो सकता है। द ट्यूब्स, दैट इज ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल कौन से होते हैं, किस तरह के होते हैं, तो दो तरह के होते हैं, आर्टरीज और वेन्स होते हैं, इसके बारे में सुना ही होगा। Arteries are the vessel which carry blood away from the heart to the various organs of the body। Very important। Arteries कौन है, Arteries वो blood capillaries है जो blood को हार्ट से दूसरे organs में लेके जाते हैं blood को। Since the blood emerged from the heart is under high pressure, the arteries have the thick elastic walls। Very important। Arteries क्या करती है, क्योंकि blood काफ़ी high pressure में होता है, इसलिए arteries की जो walls है वो काफ़ी thick होती है और elastic होती है, ताकि blood के pressure को झेल सके। While veins क्या करती है, veins collect the blood from the different organs and bring back to the heart। veins क्या करती है, अलग अलग organs में से blood collect करती है, जो used up हो गया होता है, जो वेस्ट मटेरियल वगैरह सब होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होता है, जो सारे वेस्ट मटेरियल वगैरह होते हैं वो सब वेन्स में आते हैं, और वेन्स में ब्लड प्रेशराइज फॉर्म में नहीं होता, वो नॉर्मल प्रेशर में होता है। दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स बिकॉज द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर। ब्लड प्रेशर में कब होता है, जब हार्ट से निकलता है। उसके अलावा फिर ब्लड जो है एक बार ऑर्गन्स तक पहुंच गया और ऑर्गन्स के सेल तक पहुंच गया, उसके बाद प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। इंस्टेड दे हैव वाल्स, उनके अंदर वाल्स होती है वेन्स में, दैट एंश्योर्स द ब्लड फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन।
तो एक ही डायरेक्शन में ब्लड फ्लो करेगा और वेन्स में आने के बाद वो सीधा हार्ट में जाएगा, राइट वाले पार्ट में हार्ट में जाएगा, ताकि क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है और वो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स तक जाना चाहिए ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाए और ऑक्सीजन नया वापस आ सके। तो याद रखना बच्चों, आर्टरीज, among all the arteries of the body, arteries carry blood away from the body, sorry, away from the heart to all the part of the body, while the veins carry blood from all the part of the body to the heart. There are only two parts, that is pulmonary veins. ये पल्मोनरी वेन ऐसी वेन है जो लंग्स में से हार्ट में आती है, और पल्मोनरी आर्टरी ऐसी आर्टरी है जो हार्ट से लंग्स में जाती है। ये आगे मैंने डिस्क्रिप्शन दिया, आप बराबर से उसको रिवाइज करना। तो दिस पैराग्राफ इज द रीजन व्हाई आर्टरी इज हैविंग द थिकर वॉल्स कंपेयर टू द वेन्स। तो ये पूरा रीजन है, अच्छे से लर्न करना है। On reaching an organ or a tissue, the artery divides into smaller and smaller vessels to bring the blood in contact with all the individual cells. The smallest vessel have the walls which are one cell thick, बहुत ही पतली होती है, कैपिलरी है, and are called capillaries. तो कैपिलरी एक सेल जितनी पतली होती है, ऑब्वियसली इसको पतला होना ही चाहिए। अगर ये पतला कैपिलरी नहीं होगा तो ब्लड जो है वो सेल में से कुछ भी ट्रांसपोर्ट कर नहीं पाएगा। Exchange of material between the blood and the surrounding cell take place across this thin wall. The capillaries then join together to form a veins. पहले आर्टरीज आई, बड़ी आर्टरी आई, ये आर्टरी, फिर इसके छोटे छोटे डिवीजन हो गए, अलग अलग छोटे डिवीजन हो गए, इसके अलग अलग इसके डिवीजन हो गए, यानी ब्रांचेस हो गई। ये सारी ब्रांचेस है ना वो जॉइंट हो जाएगी, जॉइंट होके क्या करेगी, जैसे कि ये जॉइंट हो गई, ये जॉइंट होगा, जॉइंट बन के ये वेन्स बन जाएगी और ये जाएगी हार्ट तक। ओके, दिस कैपिलरी देन जॉइन टू फॉर्म द वेन्स देन दैट कन्वेज द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन और द टिश्यू। तो इसके पहले जैसे मैंने आपको बताया वो दिखा देता हूँ मैं आपको वापस से। ये रहा, ये आर्टरीज, आर्टरीज की ब्रांचेस बन गई, ये देखो ब्रांचेस यहाँ बन गई, ये ब्रांचेस सभी सेल तक पहुँच गई, सारे सेल तक खून पहुँचा दिया। फिर वेन्स जो है, ये पूरे वेन्स के जो नेटवर्क है ये बन जाएगा, आर्टरीज कन्वर्ट विल इनटू वेन, एंड ये वेन जो है वो ब्लड को वापस से हार्ट तक लेके जाए। ओके, मेंटेनेंस बाय द प्लेटलेट्स, सबसे इंपॉर्टेंट काम हमारी बॉडी में जो करता है जब हमको कोई इंजरी होती है ना, तो वो प्लेटलेट्स करते हैं। व्हाट हैपन्स इफ द सिस्टम और द ट्यूब डेवलप्स अ लीक। जैसे हमने देखा, अगर कैपिलरीज फट जाती है बॉडी के अंदर प्रेशर बढ़ने की वजह से, तो क्या होता है। थिंक अबाउट द सिचुएशन व्हेन वी इंजर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग। कभी कभार हमारे हाथ में पैर में कट हो जाता है, तो क्या खून हमेशा निकलता रहता है? नहीं, थोड़ी देर निकलेगा, उसके बाद वो खून अपने आप बंद हो जाएगा। हाँ, बट माइनर इंजरी है ना, तो फिर ऐसा मत सोचना कि पेट में किसी ने चाकू मार दिया तो खून अपने आप रुक जाएगा, वेट एंड वॉच, ऐसा नहीं होगा। छोटी मोटी इंजरी होगी वो अपने आप ही ठीक हो जाती है, अपने आप खून वहां से निकलना बंद हो जाएगा। इसको बोलते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये कैसे होता है, तो लेट्स सी। नेचुरली द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज टू मिनिमाइज, कम से कम करना पड़ेगा। इन एडिशन, लीकेज वुड बी लीड्स टू द लॉस ऑफ प्रेशर, प्रेशर लॉस हो जाएगा, जो ब्लड हार्ट से जो प्रेशर आ रहा है वो कम हो जाएगा, विच वुड रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द पंपिंग सिस्टम। तो पंपिंग सिस्टम यानी हार्ट बराबर काम नहीं करेगा, इसलिए जैसे ही अगर हमको कहीं पे कोई चोट लगती है, ब्लड लॉस होने लगता है, तो प्रेशर कम हो जाएगा, और प्रेशर कम हो जाएगा तो हार्ट अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा और हम मर भी सकते हैं। To avoid this, blood at platelet cells, which circulates the blood around the body, and plug this leak by helping to clot the blood at this point of injury. इसको बोलते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। एक फाइबर जैसी जाली जैसा क्रिएट कर देगा जो ब्लड को लीकेज होने से रोकेगा। सपोज हमारी उंगली में कट आ गया, तो थोड़ी 1-2 मिनट तक खून निकलेगा, बट खून अपने आप फिर बाद में बंद भी हो जाएगा, छोटा मोटा कट अगर होगा तो। अगर आप वहाँ ध्यान से देखोगे तो येलोइश कलर की एक लेयर जम जाएगी, इसको बोलते हैं प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट करता है, अपनी काम करता है। ये ब्लड प्लेटलेट्स को लिम्फोसाइट्स भी बोलते हैं, तो याद रखना इस चीज को। लिम्फ, जैसे ब्लड है वैसे लिम्फ है, बट लिम्फ कलरलेस है। ये भी ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, बट वेस्ट प्रोडक्ट में मदद करता है। देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड ऑल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन। तो ब्लड तो एक है ही, और ये दूसरा लिम्फ है। दिस इज कॉल्ड लिम्फ और द टिश्यू फ्लूइड। इसको टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। टिश्यू फ्लूइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि हर एक टिश्यू, हर एक सेल से ये जो वेस्ट मटेरियल होता है ना,
को कलेक्ट करता है, और नॉट जस्ट वेस्ट मटेरियल बट और भी चीजें। थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज, कैपिलरीज में जो छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स यानी छेद होते हैं, some amount of plasma, proteins, and blood cells escape into the intracellular space in the tissue to form a tissue fluid called the lymph. ये lymph बनता कैसे बच्चों? देखने जाए तो ब्लड में से ही बनता है। ब्लड में से जो प्लाज्मा होता है, जो पेल येलो कलर का जो प्लाज्मा मैंने आपको बताया जिसमें सेल्स तैरते रहते हैं, तो प्लाज्मा होता है, वेरियस प्रोटीन्स होते हैं, देन ब्लड सेल जो किसी तरह से इंट्रासेल्युलर टिश्यू में घुस जाते हैं, तो टिश्यू उसको लिक्विडाइड फॉर्म में करती है और एक लिक्विड बन जाता है जिसको बोलते हैं लिम्फ। ये लिम्फ कलरलेस होता है। इट इज सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड बट कलरलेस एंड कंटेन्स लेस प्रोटीन। ब्लड में जितना प्रोटीन होता है अलग अलग बॉडी से प्रोड्यूस किया हुआ, सेल से प्रोड्यूस किया हुआ, उतना सारा प्रोटीन नहीं होता इसमें। लिम्फ ड्रेन इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज फ्रॉम द इंट्रासेल्युलर स्पेस। जैसे वेन्स होता है ना बच्चों, तो लिम्फ का जो भी वेस्ट प्रोडक्ट ये कलेक्ट करेगा ना टिश्यू में से, वो सबका सब लिम्फेटिक कैपिलरीज यानी एक तरह का वेन्स ही है वो, तो वेन्स में वो डिपॉजिट कर देगा, विच जॉइन टू फॉर्म द लार्ज लिम्फ वेसल एंड देन फाइनली ओपन्स इनटू द लार्जर वेन्स। तो छोटी 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 जो वेन्स होती है, इन वेन्स को कलेक्ट करते 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 ये जो लिम्फ सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम जो है, वो सारी कैपिलरीज मिक्सड होके जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह हर एक सेल से निकलता है वो बड़ी वेन में डाल देगा। Lymph carry digested and absorb fats from intestine and drains excess fluid from extracellular space back into the blood. In short, ब्लड को जितनी काम की चीजें है, जैसे फैट मॉलिक्यूल्स हो गया, कुछ कुछ प्रोटीन हो गया, ये सारी चीजें ब्लड में जो काम की चीजें वो लिम्फ पहुंचा देगा, बट जितनी वेस्ट प्रोडक्ट है ना वो बाद में निकाल देगा। ओके, तो लिम्फेटिक सिस्टम का ये काम होता है। So that was the topic of today. It was a very important topic. हार्ट का स्ट्रक्चर हमने देखा, किस तरह से क्या था वो हमने देखा। वापस से मैं ज़रा हार्ट का आपको फ्लो चार्ट बता देता हूँ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए मुझे बार बार बताने में अच्छा लगता है। फ्लो चार्ट ऑफ ब्लड फ्लोइंग इनटू द हार्ट। हार्ट में कहाँ से आएगा, तो हम लोग राइट साइड से शुरू कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया, राइट लेफ्ट साइड से भी शुरू कर सकते हैं। वेना कावा, वेना कावा टू टाइप्स के होते हैं, सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा। सुपीरियर इन्फा कावा वेना कावा वो होता है जो हार्ट के अपर पार्ट से ब्लड लेके आता है, एंड इन्फीरियर वेना कावा वो होता है जो हार्ट के लोअर पार्ट से ब्लड लेके आता है। ये ब्लड कौन सा होता है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये। राइट आर्टीरियम में जाता है व्हेन राइट आर्टीरियम रिलैक्सेस, देन राइट आर्टीरियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही चल रहा है ये, जो ट्राइकस्पिड वाल्व से जाता है। Then through right ventricle it moves to pulmonary artery. This is the only artery which carries deoxygenated blood and it moves through lungs. बाकी की जितनी आर्टरीज हमने देखा कि ब्लड ऑर्गन्स तक पहुंचाती है, बट ये पल्मोनरी एक आर्टरी ऐसी आर्टरी है जो हार्ट से लेके लंग्स तक पहुंचाती है। नाउ इट कम्स टू लंग्स। नाउ लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड जो आया था वो तो एक्सेलेशन में निकल जाएगा, तो जो ऑक्सीजन लिया गया था दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड आएगा, कैपिलरीज कलेक्ट करेगी एंड इट मूव्स थ्रू पल्मोनरी वेन। जनरली वेन क्या करती है बच्चों, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेके हार्ट तक जाती है, बट ये एक ऐसी पल्मोनरी वेन है, अकेली ऐसी वेन है जो लंग से ऑक्सीजन वाला खून लाती है और वो फिर हार्ट में लेके जाती है। थ्रू पल्मोनरी वेन इट मूव्स टू लेफ्ट आर्टीरियम व्हेन लेफ्ट आर्टीरियम रिलैक्सेस। जब लेफ्ट आर्टीरियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा इट विल मूव टू लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू बाइकस्पिड वाल्व, and through left ventricle the blood moves through aorta, and through aorta is the biggest artery of the human body, सबसे बड़ी आर्टरी होती है, सबसे ब्रॉड आर्टरी होती है। ये ब्रॉड इसलिए होती है क्योंकि हमने देखा पंपिंग कर रहा है, ब्लड पंप हो रहा है हार्ट से, तो इट इज इन हाई प्रेशर, वो काफी ज्यादा हाई प्रेशर में होता है, इसलिए इसको पंपिंग की जरूरत है टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। क्योंकि ब्लड यहाँ राइट साइड से आ रहा है, वही ब्लड यहाँ पे लेफ्ट साइड से भी आ रहा है, तो ब्लड ट्वाइस, टू टाइम्स एक साइकिल में घूमता है हार्ट के अंदर, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन भी बोलते हैं। एक बार डायग्राम आप लोग देख लो हार्ट का। हार्ट का डायग्राम आप लोग देख लो, ये एरोज आप लोग खास देखना। पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन्स, मैं वापस यहाँ बताता हूँ। पल्मोनरी वेन से यहाँ लेफ्ट आर्टरियम में आएगा, लेफ्ट आर्टरियम से बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा,
लेफ्ट वेंट्रिकल से खून जाएगा एओर्टा, एओर्टा से पूरी बॉडी पार्ट्स, ये बॉडी पार्ट्स में से ये यूज्ड वाला ब्लड जो रहेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन तो यूज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है वो यहाँ सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा से ये वाले हिस्से में आएगा, ये रिस राइट आर्टीरियम में, यहाँ से डायलेट होके ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा डीऑक्सीजनेटेड, और यहाँ से ब्लड मूव करते करते पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा टू कलेक्ट न्यू ब्लड, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करने के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे छोड़ देगा। ओके, so that was the explanation of heart, that is transportation system। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, हार्ट का डायग्राम, हार्ट की पंपिंग एक्शन, ये सेक्शनल व्यू ऑफ हार्ट था, और ब्लड फ्लो इन हार्ट अलग से डायग्राम में पूछते हैं, तो ये जो है कि हाउ द ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये वाला डायग्राम करना है आपको उसमें। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिस वन, अब इसको अच्छे से याद करना, इसको बार बार ये वीडियो देखना, और कीप इट अप। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, बाकी का नेक्स्ट टॉपिक में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।